الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی. عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اللہ تعالیٰ نے امر، اللہ تعالیٰ نے جو امر کیا ہے، جو حکم کیا ہے، یا جو اس پہ کیا کرو، فلا ڈو نوٹ ہیسن، یعنی جلد بازی مت کرو اس کے اندر. سبحانہ تعالی عما یشرکون. اس کا مطلب پتہ رکھیے، سبحانہ، چلو یہ تو ہو گیا سبحانہ، اونلی ہز وے، یا تو آپ اس کو گلوریفائی لے لو، جو بھی لے سکتے ہو. وہ تعالی عما یشرکون، وہ تعالی عما یشرکون کا معنی بتاؤ رقیب، آپ اس کو کیا سمجھے؟ رقیب آواز آ رہی ہے؟ جی مولانا بھائی کون سا بولا جو نے ہائی لائٹ کیا ہے. کون سا نمبر کیا جی ہے؟ احمد بھائی السلام علیکم. سورہ ہاں النحل کی پہلی آیت. جی جی. وہ تعالی عما یشرکون. کون سی والی بات کر رہے ہیں؟ اس میں تو نہیں ہے. وہ لاسٹ میں، سوری لاسٹ میں. 16 کی فرسٹ اسکرین پہ دیکھو نا، اسکرین پہ دیکھو. رکو میں دوسرے ٹیب کھول کے بیٹھا. رکو ذرا. ہاں سورہ نحل. یعنی کہ جو اس سے کیا بولتے ہیں، ہندی میں بولیں گے تو رکو ہندی کھول دو. وہ تعالی عما یشرکون. تو یہاں پر ہاں دیکھو اس کے ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکتے ہو کچھ؟ 2 منٹ رکیے. مجھے چھوٹا دکھ رہا ہے بہت. اچھا احمد بھائی السلام علیکم. بلندی پہ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی بلندی کی بات کر رہا ہے نا یہاں پہ، کہ وہ جو کہتے ہیں ان سے بہت زیادہ بلند ہے اللہ. مطلب وہ جو اچھا چیز اچھا شریک کرتے ہیں نا، جو چیز شریک کرتے ہیں، جو دوسروں کے باتوں کو ملواتے ہیں اللہ کی باتوں سے، اللہ ان سے اوپر ہے، ان سے دور ہے، ان سے دم ہے. مطلب یہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے بہت بڑھتر ہے وہ، اس کی ذات. جی جو شریک کرتے ہیں. نہیں تعالی دیکھو، کیونکہ یہ اللہ بھائی عربی میں کیا تعالی، کیونکہ تم لوگ شرک کرتے ہو، یعنی کہ شرک کر تو اس کا جو نتیجہ کیا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ الوف ہو گیا، دور، تم سے دور ہو گیا. جی کیونکہ تم شرک کر رہے ہو. کیونکہ تم لوگ کیونکہ تم لوگ شرک کرتے ہو. ہاں کیونکہ تم لوگ شرک کرتے، یہ ہے اس کے معنی، اس کے اوریجنل سمجھیں گے. ہاں مطلب تم سے اللہ تعالیٰ دور ہو گیا، انگلش میں بولتے نا، انگلش میں ہوتا الوف ہو گیا. ہاں زبردست ہو گیا مناف صاحب، زبردست بات ہو گئی. جی احمد بھائی بولیے، آپ کو جواب. جو ان لوگوں نے کرا ہے کہ برتر ہو گیا، تو وہ یہاں پہ بات ہی نہیں بیٹھتی، جو ابھی آپ نے بات کری وہ پوری بیٹھ رہی ہے. ہاں یہاں ایگزاجریٹ کر دیا ترجمہ میں انہوں نے. ہاں چلیے آگے چلیے. کیونکہ جو انہوں نے کیا ترجمہ اس میں تو سینس ہی نہیں بنتا. ہاں سینس لیس بات ہو گئی، بالکل سینس لیس بات ہو گئی. دیکھو نا ترجمہ کیا لکھا ہے انہوں نے انگلش میں، کہ اللہ تعالیٰ ایگزالٹیڈ ہے اباؤ واٹ دے ایسوسیٹ، اباؤ واٹ دے ایسوسیٹ، یعنی کوئی سینس بنا کی بات ہے بالکل. ہاں سینس لیس ترجمہ ہو گیا بالکل. ارے رقیب اسکرین آواز آ رہی ہے نا، سیرخان آواز آ رہی ہے؟ بالکل 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 یوٹیوب پہ چیک کرو، یوٹیوب پہ چیک کرو رقیب. رکو ذرا میں چیک کر لیتا ہوں کہاں گیا. السلام علیکم مناب. وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے ہو؟ میں بڑھیا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے.
आ रही है voice? मुनाव हाँ How long it takes a beginner like जी, my बोलिए। dad to go from beer belly to get आ रही है मना भाई यूट्यूब में वॉइस आ रही है, वॉइस इश्यूज नहीं है, नो वॉइस इशू। हाँ शेरखान आवाज आ रही है। शेरखान आपके वहाँ कुछ प्रॉब्लम है? हाँ अहमद भाई बोलिए। हाँ मुनाव अंकल, मुझे ये सवाल पूछना था आपसे। मैं आपको अंकल बुलाऊं या फिर भाई? जो मर्जी अंकल बुलाओ, भाई बुलाओ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है बुलाओ। मुनाफ भाई भी है, मुनाफ अंकल भी है, मुनाफ नाना भी है, मुनाफ दादा भी है, तुम्हें जो बोलना है। दादा नहीं, भी वैसे है। मुसलमानों के हिसाब से मुसलमान सब भाई भाई हैं, तो भाई के हिसाब से भाई हो गए और उम्र के हाँ हिसाब से चलो अंकल हो गए। भाई बुलाओ, मुनाफ बुलाओ, भाई बुलाओ, मुनाफ भी बोलोगे तो भी चलेगा, चाचा बोलोगे तो भी चलेगा, नाना बोलोगे तो भी चलेगा, अंकल बोलोगे तो भी दादा चलेगा, दादा बोलेंगे तो भी चलेगा। तो मुनाव अंकल, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे अल्लाह ताला का कोई शरीर वो नहीं है, शरीर नहीं है, या फिर उनका कोई रंग रूप नहीं है, ना कोई उनका आकार है ना? बिल्कुल। तो वो जन्नत में लोगों को दिखाएंगे कैसे अपने आप को? मतलब जन्नत में जब सब चले जाएंगे कयामत के बाद, तो वो अपने आप को उनने वादा कराया ना कि हम अपने आप को दिखाएंगे अल्लाह ताला। ये कहाँ आ गया हूँ? दिखाएंगे अगर कुरान से भी कहा, मुलाकात तक का है, मुल्ला को रब्बे ही। मीटिंग बोला है, मुलाकात करना बोला है। हाँ नहीं, मतलब मुलाकात तक का है। हाँ, तो फिर वो दिखाएंगे कैसे? मतलब उनका निराकार है, फिर ये समझ में नहीं आता। मैं निराकार है आपसे फिर? मीटिंग नहीं कर रहा, आपसे मैं अभी मीटिंग नहीं कर रहा, आपसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा फेस आपने देखा है? नहीं तो मीटिंग नहीं देखिए देखा है ना आपका फेस। हाँ देखिए अहमद भाई, देखे ना हमारी तो रूह है ना जन्नत में, वहाँ थोड़ी बॉडी है हमारी अभी जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी नहीं है ना। तो जी अल्लाह का सातवें वहाँ सारे का सारा इल्म बेस है, इल्म से आप पहचानेंगे एक दूसरे को। और जी अल्लाह का अर्श का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अल्लाह का अर्श है? तुम क्या समझते अरे हो? कंफ्यूजन नहीं, बहुत होती है। आप क्या समझ रहे हो बताओ, आप क्या इसका अंडरस्टैंड ले रहे हो अहमद भाई? अल्लाह का अर्श का मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह उधर ही रहते हैं, मतलब उधर ही है उनका स्थान जहाँ पे अल्लाह का अर्श है। ये कैसे हो गया? नहीं एक मिनट हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। देखिए अहमद भाई ऐसा नहीं, देखिए ना आप पहले आपने अपनी आप कितना पढ़ा, आपको कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी आप? बोला तो बताया तो था 11th में। 11th में हाँ, तो देखो रकीब भी 11th में है। अब आप अपनी अक्ल यूज कीजिए कि कोई अल्लाह पहले तो आपने खुद ने कहा कि अल्लाह ताला की बॉडी नहीं तो है। बोले बात कंप्लीट करें, आपकी बात कंप्लीट करें। नहीं, मैं बस ये कह रहा था, वो वॉइस आ रही थी इस वजह से। हाँ नहीं हो गया, अजान हो रही थी। तो आप देखें ना अल्लाह ताला आपने खुद ने कहा, आपको ये पता है माशाल्लाह, आप ये जानते हो कि अल्लाह ताला की बॉडी नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, ना वो पैदा हुआ है ना पैदा करता है, ना कोई फिजिकल शेप ही नहीं उसका। तो फिर ये बात तो सेंस नहीं बनाती ना कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है, बैठा है। ये तो अल्लाह का अर्श का मतलब क्या है? 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है। ये समझने के लिए आपको अर्श समझना पड़ेगा, अर्श क्या है। हाँ, है ना? तो सर को क्या कहा गया है? रास। हज की आयत में आता है रास, तुम्हारे सर का मसला करो। रास अर्श ये एक ही वर्ड में से निकले हुए हैं, एक ही डिरेटिव्स है, उसके डिरेटिव्स है। तो आप उसको जरा उसमें देख लीजिएगा डिक्शनरी में अर्श के मायने क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन अभी जो मुझे पता बताऊंगा तो आपको वो बात इतनी जल्दी समझ में नहीं, जब तक वो आयत आप खुद से पढ़ोगे। आप पहले आयत आप पढ़ लो मेहनत नहीं हज की। करोगे तुम। हाँ, और रास की जो उसको समझने की कोशिश करें, और फिर उसका डिक्शनरी में उसका मायने देखिए, या कुरान शरीफ में दूसरी जितनी भी आयत है ना अर्श के ऊपर, रास के ऊपर, वो सब पढ़ के उसको समझने की कोशिश करें।
इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल नहीं जाएगी। गिबा मैं भाई, तो देखो शेयर कर छोटा सा बात करो, छोटा सा एक बात करो बोले कि जैसे एक अगर हम लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल है, एक मिनट रखिए, एक मिनट दो। देखिए अहमद भाई, आपने आयतल कुर्सी तो आयतल कुर्सी पढ़ी है ना? नहीं अहमद भाई समझी नहीं है। समझे नहीं है, ओके। वहाँ आयत आती है ना, कुर्सी होती है समावात वल अर्द, वसी समावात वल अर्द, है ना? कुर्सी कुर्सी तो कुर्सी क्या होती है? कुर्सी जो हमारी कुर्सी है, यही कुर्सी। तो हमारी कुर्सी जो कुरान से अल्लाह पाक बता रहा है, कुर्सी हमारी बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन को कुर्सी है। क्यों? तो कुर्सी अभी एक चेयर पड़ी है, एक समझो एक चेयर पड़ी हुई है, नॉर्मल चेयर, तो उसको कहेंगे चेयर है, ये कुर्सी है। लेकिन जब उसके ऊपर किंग आके बैठ जाएगा तो क्या कहेंगे? वो कुर्सी क्या हो जाएगी? अब वो कुर्सी आप उसको कुर्सी कहोगे? नहीं। अहमद भाई क्या कहोगे? थ्रोन हो गया, क्या कहोगे? अब वो थ्रोन हो गई ना क्रैक हो कुर्सी, गई अब थी। उसको हाँ कुर्सी नहीं कह सकते ना, थ्रोन हो गया, वो राजा बैठ गया उसको ऊपर आके। तो नॉर्मल पहले बैठते थे आदमी तो कुर्सी, अब राजा उस पर बैठे था, वो थ्रोन हो गई कुर्सी। तो जब हमारे दिमाग में राजगद्दी हो हमारे गई। दिमाग, हाँ गद्दी बोलो या थ्रोन बोलो इंग्लिश में, तो जब तक हमारे दिमाग में अल्लाह ताला की आयत नहीं है, अल्लाह ताला की आयत की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आएगी तो आप उसको अमल कैसे करोगे? जब आपसे अमल ही सही नहीं जी होगा तो उसका नतीजा कैसे मिलेगा जो अल्लाह ताला ने गारंटी दी है? जी मुनाफ भाई। तो उसकी मुनाफ अंडरस्टैंडिंग भाई आपके दिमाग में, हाँ एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। तो उसके अंदर जी जी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ गई, तो अब वो जो कुर्सी थी क्या हो गई? वो आर्ट्स बन गई, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की आयत है, अल्लाह ताला की आयत की अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो फिर वो कुर्सी आर्ट्स बन जाती है। आपको मैंने हिंट दे दिया, आप समझ जाओ, या आगे आगे आयता वो आयता पढ़ लेना फिर ओके। हाँ लगे बोले। मैं ये बोल रहा हूँ, सब कुछ अगर बना बनाया मिल गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो उससे ना आपको भी मज़ा आएगा। और आप एक आयत खोलने के लिए, एक आयत समझने के लिए आप अगर 10 आयत खोलोगे ना, तो आपको 10 आयत को सीखने को मिलेगा, और 10 से 100 आयत सीखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बना के दे हाँ देंगे तो एबे आप भाई एक आप, में ही पढ़ हो हाँ जाओगे। दो तीन रोज ले ले, 2-3 रोज लेके कोशिश करे, उसके बाद फिर नहीं समझ में आता तो फिर मुझे बताया कि मैंने ये आयत पढ़ी समझ में, फिर मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको जी पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है खुद के, उस पर तदब्बुर तफक्कुर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक आयत जी सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुम अफ़ला ताक़िलून। क्यों रकीबुल भाई, आप नीट की तैयारी कर रहे हो? ऑब्वियसली। तो आपके नंबर कितने आते हैं मॉक टेस्ट में? मेरे नंबर आते हैं, अच्छे आते हैं, 670 80 ऐसे कुछ आते हैं। ये कुरान की बरकत है अहमद भाई, जो ये इतना दिमाग लगाता है ना कुरान पे, तो अल्लाह ताला फिर जो है मुलाकात करता है इससे बाकायदा, और नीट में इसको लाता है इतने पोजीशन के ऊपर। नहीं ये वेस्ट बंगाल में फर्स्ट नंबर पे चल रहा है भाई ये। हाँ पहले मैं रकीबुल को मैं ये सोच रहा था कि ये स्ट्रीम करता रहता है, पढ़ के पाता होगा। नहीं, वो स्ट्रीम ऐसे नहीं करता, वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है ना। तो कुरान का यही तो मौजूदा है कि आप जब उसमें डूबोगे तो आप अपनी फील्ड में माहिर हो जाओगे। यही तो करना है, अल्लाह का हुक्म यही है कि आप उसको क्योंकि पढ़ोगे। आपको डीप थिंकिंग मिलती है। आप अगर हाँ कोई चीज़ों को डीपली समझने लग जाते हो ना, तो एक चीज़ों को आप डीपली समझने लग जाते हो। जैसे अगर इसमें हम काम करेंगे ना, तो उसके वजह से हमको डीप थिंकिंग मिलेगी। हमको कुछ और चीज़ों को ना, जैसे ए को हम एप्पल को एप्पल से नहीं समझेंगे, हम जैसे समझे थे वैसे नहीं समझेंगे, हम दूसरी तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे समझने की दिक खुल जाती है। ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। समझ गए अहमद भाई? जी जी हाँ, एफआर अहमद भी होता है। तो आप समझ लो कि जब आप हाँ इस क्लास को जब आप पढ़ना शुरू करोगे और समझना शुरू करोगे, तो फिर आपको एफआर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।
اس لیے تھوڑا سا آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا عرش کا مطلب سمجھنے کے بعد. پھر اپن ڈسکس کر لیں گے. جی مناب بھائی آگے آپ چلیے. تو یہ سورہ نحل کا تھوڑا اور ایک ہم منابع کو آیت دینا چاہیں گے, وہ ذرا اوپن کیجیے, بڑی خوبصورت ہے, اگر اس کو کمپلیٹ ہو گیا تو. ارے ابھی تو شروع ہی ہوئی تھی یار, کمپلیٹ کہاں ہوئی. چلو تمہاری کھول لو, تو کہیں سے بھی اپن کر سکتے ہیں تلاوت تو. انڈین بھائی نیا کالر آیا ہوا ہے. ارے یہ ہمارے نہیں ہے, یہ ہمارے سنجے بھائی ہیں بھائی. ہاں بزنس. ہاں سنجے بھائی ہیں, بہت بڑے گیانی ہیں یہ. نہیں, I respect Sanjay bhai because he was a very intelligent person in Sanatan Dharma. ہاں یہ ہمارے سنجے بھائی ہیں, ہماری اس ٹیم کی جان ہے. آدی شنکراچاریہ کے بعد انہی کا نمبر ہے. بالکل بالکل. احمد بھائی ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا کہ اپن کو کہیں بھی کسی بھی طرف کوئی اشارے بازی نہیں کرنا. کوئی کچھ بھی کرتا رہے اپنے ساتھ, اپن کو اپنا راستہ دیکھنا ہے اور وہ منزل اپن کو حاصل کرنا ہے. اس بات کو پہلے آپ گٹھان مان لو اپنے اندر. جس دن آپ نے یہ رویہ اپنا لیا نا, اس دن آپ نے سنت فالو کر لی بہت بڑی, ہے نا. مطلب ایسی ویسی سنت نہیں, سنت اللہ. ہاں مطلب وہی مطلب ہے بیٹا, وہی مطلب ہے. تو اب آپ نے جب راستہ دیکھ لیا کہ ہمیں اس راستے میں چل کے منزل حاصل کرنا ہے, تو اب راستے میں آنے والے گڈھے, کانٹے, کنکڑ, پتھر, ادھر اپنا دماغ نہیں اٹکانا اپن کو. سیدھا راستہ دیکھ کر کے اپن کو چلنا ہے اس پہ. تو کون کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں کون کیا کہہ رہا ہے کہنے دو اس کو, ایک طرف سے سنو ایک طرف سے نکال دو. اور اس نے جو کہا ہے نا, اس کو ڈیپلی جا کے سوچو کہ اس نے کیوں کہا, اور اس نے کہا تو اس کو ہم کیسے فیس کریں گے. اس کے سامنے اس کو جواب دے کے نہیں, اپنی عقل کو تسلیم کرا کے. تو زندگی بھی بہت آسان ہو جائے گی, سکون میں آ جائے گی, اپن پیس میں آ جائیں گے, اور ہمارا دماغ ڈسٹرب ہونے سے بچ جائے گا. جی ہے نا. یہ مطلب سماج کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا, تانا بانا, تو اس میں لوگ ہمارے دماغ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کریٹ کرتے ہیں, اور ہم ان چیزوں میں پھنس کے اپنی اصلی منزل بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اصلی منزل نہیں بھولنی, ہمیں راستے کے جو بھی یہ اتار چڑھاؤ ہیں ان کو محنت سے پار کرنا ہے, بس بنا کسی چیز کو نقصان پہنچائے ہوئے. جب آپ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے نا, پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ نقصان پہنچا دو پہلے وہ نقصان پہنچائے, پہلے نقصان مطلب پہلے وہ نقصان پہنچائے نہیں پہنچا سکتا. جب آپ نقصان پہنچانے کی غرض ہی نہیں رکھو گے, نقصان آپ کے لیے نیوٹرل ہو جائے گا. وہ آپ وہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں, جب آپ راستے پہ جاؤ گے اور راستے میں جو اونچ نیچ, اتار چڑھاؤ, گڈھے, کنکڑ, پتھر, کانٹا, یہ چبھ رہا ہے, تو کانٹے چبھ گیا کانٹا تو اس کی تکلیف مت دیکھو کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے, بلکہ کانٹا جو چبھا ہے اس سے سبق لے لو. یہ کانٹا جو ہے یہ چبھنے کے لیے ہوتا ہے, یہ چبھے گا ہی چبھے گا. سمجھ گئے. جی تو جی. اس چیز یہ تھوڑا سا اپن کو سوچتے ہوئے چلنا ہے. انڈین بھائی آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ یار میرا نام جو ہے عارف ہے, عارف. عارف خان. ہاں میرے ٹیچر کا بھی نام عارف خان ہے. چلو اچھا ہے بھائی. جو بھی ہو مناسب صاحب ایک اوپن کیجیے 30 کی 30 سورہ روم کی 30. ایک منٹ لگی, اسے 2 سیکنڈ نمبر کی آیت تو امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ ہاں نمبر وہی کی میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, چلنے دو اس کو. ينزل الملائکۃ بالروح من امر اللہ من یشاء من عبادہ ان انذروا. یہ امپورٹنٹ ہے, بس یہاں تک.
अन यंज़ुरु इन्नहु ला इलाहा इल्ला आना फत्तकू। मुनाफ साहब, मैं इसमें अब जो ये समझ रहा हूँ, तो इसमें तो बहुत बड़ी बात हम्म, अल्लाह ने कह दी कि ये तो वही पहुंचा रहे हैं सबके पास अल्लाह ताला। हाँ मैं वही कह रहा था आपको, ये लोग कहते हैं कि वही नहीं आती, नहीं करता, देखो ये आयत में क्या लिखा हुआ है। इसमें तो साफ क्लियर है बिल्कुल। इसलिए मैंने ये आयत गजब खोली यार, हाँ, बहुत जबरदस्त हुआ। जी जी, आप कि करिए, वही होती तर्जमा नहीं, करिए वही आप। बंद हो गई। ये गपड़बाजों को वही के मायने ही नहीं पता कि वही कहते किसको, बोलते वही बंद हो गई, वही ये हो गई। देखो ये क्या लिखा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ मेरे बंदों में से वही करता हूँ। हाँ रू नाजिल करता हूँ उस पर, सॉरी वही नहीं, रू नाजिल करता हूँ उसके ऊपर। हाँ, तो वो जाहिर बात है कि वो वही तो ही है ना। आयतों की अंडरस्टैंडिंग, आयतों की स्पिरिट। हाँ ये उर्दू वाला रू नहीं है, अरबी का रू है। जी जी जी, अरबी वाला रू। गजब यार मुनाफ भाई, कितना साफ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है स्टेटमेंट। अब क्या ताकि करें, देखो आगे इसका आगे क्लेरिफिकेशन भी दे दिया ना। क्यों करता हूँ ताकि वो बंदा, ये इबादही उसका बंदा, अन यंज़ुरु इन्नहु ला, क्या अल्लाह ताला लोगों प्रेजेंट कर दे या खबरदार कर दे, जो भी आप इसका ले लो, लेकिन इसका जो ओरिजिनल, इसका जो मैंने लोगों साथ में प्रेजेंट कर दे कि मैं ही हूँ, ला इलाहा, कोई इला हाँ। नहीं, इल्लाहु, इल्ला यानी मेरे लिए, अल्लाह पाक कहते हैं मैं, फत्तकू, मेरे कॉन्शियस हो जाओ। हाँ है युनज़्ज़िलुल मलाइकति बिल रूह, मलाइकतों को रूह के साथ में नाजिल कर रहा है, जिस पे चाहे मेरे बंदों में से, कौन से बंदों में से, जो मेहनत कर रहे, जो आयत को समझने की कोशिश कर रहे, जो तदब्बुर कर रहे, जो तफक्कुर कर रहे, उसकी बात हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल जी। भाई ये लोग ने क्या धूम मचाई हुई है कि भाई होते ही नहीं, रूह नाजिल हो ही नहीं सकती, वही नाजिल होती ही नहीं, सब कुछ बंद कर दिया। रसूल भी नहीं आएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी, अल्लाह बात भी नहीं करता, शैतान करता है, शैतान सब कुछ करेगा। वो शैतान का दुश्मन है ना, तो शैतान आता है, बात करता है, हमको सब देता है। भाई ये सब दरवाजे इसलिए बंद करे हैं इन्होंने, क्या हमारी सुनो, हम कहेंगे जो बात वो मानो भाई बस। हाँ, अब हमारी सुनो, हम बताएंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने ये नहीं बताया ना, कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ये बताना भूल गया, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ने सही नहीं बताया, अल्लाह पाक ने ये नहीं बताया, हम बताएंगे। क्या यार बताओ आप। हाँ रकीब बोलो, अब क्या बोलते हो? रकीब रकीब बोले। कौन सी सूरत का बोल रहे थे, बताओ। 30 की 30। अच्छा, कौन सी? रोम की 30 रोम 30 की 30। 30 की 30 रोमी है ना रकीब? हाँ यस यस। रूम है। बोलो, फ़आकिमू वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील खल्क़िल्लाह ज़ालिका द्दीनुल क़ायम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। माशाल्लाह, कितने ब्यूटीफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आयत है।
आए थे हाँ करो ना क्या कर रहे थे क्या कह रहे थे बोलो कितनी अच्छी मैसेज है ना मना भाई की शायद में। रिस्टोर करो देखो क्या है ये आकिम फिर कंडीशन फिर है ना ये ऊपर क्या करो आकिम करो रिस्टोर करो रिसलेक्शन करो वजूह का तुम्हारा व्यू पॉइंट तुम्हारा नजरिया ली दीन अल्लाह के सिस्टम की तरफ अल्लाह के सिस्टम जो हनीफा है हनीफा के महीने क्या होते हैं हनीफा के महीने होते हैं कि जो सबसे अलग डिफरेंट यूनिक कह सकते हैं अपन यूनिक हाँ यूनिक है फितरत अल्लाह लती फितरत नास ये अल्लाह की फितरत पे ही जो फितरत है वही नास की तरफ वही है अलैहा यानी हमारे अंदर भी सब सिफत रखी है अल्लाह ताला ने जैसे सूर्य हसर में आता है कि अल्लाह ताला पेंटर है ये है वो सब चीज़ आती है ना तो वही सिफत है हमारे अंदर रखी है अल्लाह ताला ने लेकिन हमको लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड है आया भाई समझ में रकीब यस यस अल्लाह ताला की सिफत पे हमको हम भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं ना बना सकते हैं टेबल बना सकते हैं कंप्यूटर बना सकते हैं ये सब लेकिन हमारे अंदर लिमिटेड है और अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो अनलिमिटेड है उसकी कोई लिमिट नहीं है उसी पे हमको अल्लाह की फितरत पे हमको बनाया गया है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ला यालमून लोगों के पास इल्म नहीं है इल्म आ गया यहाँ पे इल्म यानी इंसान ने अपने आप को कितना कमतर कर दिया मुनाफ भाई यहाँ पे मतलब हाँ कितना मतलब आप इतनी बड़ी बात कही है अल्लाह ताला ने यार मतलब आप अपनी साइकी को इग्नाइट करो और आप बढ़ते चले जाओ तो ये रोक देते हैं यहाँ पे कि नहीं ला तब्दील खल्क अल्लाह के जो अल्लाह ने जो खलक किया नहीं तब्दील नहीं हो सकता है ना अल्लाह ताला की सुन्नत कुछ भी ये फिजिकल लॉ तब्दील नहीं हो सकते तभी तो बहस कर रहे थे ना कि मैंने वही किया कि भाई बिना बाप का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है बिना साहबी के बिना कंपेनियन के बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता कोई औरत प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती यहाँ देखो अल्लाह तब्दील नहीं हो सकता अल्लाह ताला ने अपने आप को भी उसको वो कर दिया है खुद की मिसाल लेके समझा दिया कि मुझे भी पैदा करना होता तो मेरे साथ कुछ होता ना हाँ जालिका इसी तरह मेरा दीन कायम है जालिका दीनुल क़य्यम जबरदस्त तो इसी प्रिंसिपल पे दीन कायम है कोई चीज चेंज नहीं होगी जो भी फरिश्ता आ जाए हमारी सिस्टम के अंदर कायनात में या जो भी आ जाएगा उसको इसके लॉ को फॉलो करना पड़ेंगे इसी लॉ से होगा जो कुछ भी होगा ये लॉ अप्लाई होंगे सबके ऊपर यानी अल्लाह के जो यूनिवर्सल कांस्टेंट लॉ हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे बहुत जबरदस्त ना कोई दूसरे मंथ को चाहे कोई भी हो आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आपको सीढ़ी से या लिफ्ट से या टेक्नोलॉजी से ही जाना पड़ेगा उड़ के आप नहीं जा सकते मुनी देखो ये कितना खूबसूरत अल्फाज अल्लाह का मुनीबू इलैही यार डॉक्टर साहब देखो एक्सप्रेशन देखो कितना सॉफ्ट तरीके से अल्लाह ताला ने बोला है एक माँ बच्चों बोलती है ना अपने बेटे को मेरी तरफ घूमो मेरे नजरे की तरफ घूमो ये तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चों ये तुम क्या कर रहे हो मेरी तरफ घूमो इसको समझो वत्तकू कॉन्शियस हो जाओ इसके मेरे लोग के अत्तकू वाकीमुस्सला और आकीमुस्सला
यानी रिस्टोर करो, सोशलाइज हो लोगों से, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के मसले हल करो, अमन के लिए हाँ। काम करो, कम्युनिकेशन Socialize करो, हो एक जाओ। दूसरे, हाँ, एक दूसरे कनेक्टेड रहो। कनेक्टेड हो जाओ। हाँ, हम्म। ताकि वला चीजें तकुनु आसान हो जाए तुम्हारे लिए। हाँ, वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, तुम मुशरिकों जैसे नहीं हो जाओ। यानी आप अपने अपने हिसाब से नहीं चलो, ये जो फिजिकल लॉ के हिसाब से चलो, जो कुदरत के लॉ है। देखो अब आप आयत का मुशरिक, नाम ही सूरह नहल कितना खूबसूरत दिया है कि जो मधुमक्खी होती है वो बिल्कुल फितरत के एन चलती है बिल्कुल। हाँ, फितरत के साथ चलती है। अभी अपन जो पिछली जो पढ़ रहे थे ना, तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये देखो आप फितरत कानून फितरत जो है वो कायम करता है बिल्कुल, उसको कांस्टेंट ला बदल नहीं सकता कोई, इसलिए उसी के हिसाब से चलो अभी और एंजॉय करते रहो। आगे आगे बहुत बड़ी आयत आ रही है डॉक्टर साहब, आगे बहुत बड़ी आयत आ रही है। हाँ, ये आ गई इन बदमाशों की, जो अहले मदरसा की बदमाशी है उसकी पोल खुली है इधर। मिनल हाँ, मिनल लजीना मिनल लजीना हाँ, मिनल लजीना हाँ, मिनल लजीना फरीकुद्दीनहुम व कानू सिया, यानी अल्लाह पाक कहे जो लोगों ने भी फरीकू का ग्रुप बनाया, इसका ना क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया अल्लाह ताला को मालूम है। ओके, मिनल लजीना फरीकुद्दीनहुम, यानी कौन से दिन में ये दिन कहाँ गया, हाँ, जो कांस्टेंट जाले का ये दिन मतलब अल्लाह ताला के सिस्टम, कुरान की जो सिस्टम है उसको छोड़ के तुमने अपने अपने दिन बनाए, यहाँ सबने मजहब बना लिए। हाँ ये वो फिरके की बात कर रहा है, समझ गए ना, हाँ जिसने अल्लाह की किताब को छोड़ के अपने अपने ग्रुप बनाए, हाँ, इस्लाम ये बनाया, पोल खुली सनातनी है। बनाया, क्रिश्चियन बन गए। हाँ, ये सब मजहब, सारे मजहब की बात कर रहा है। ये उसकी बात नहीं हो रही है कि हमारे इस्लाम के अंदर जो मजहब है उसके अंदर फिरके है, उसकी बात ये नहीं हो तो रही है। लोगों ने अपने अपने बना के रख ली है ना, डिवाइड कर हाँ, दिया अपने आप। हाँ, अपने अपने फिरके जो बनाए लोग, उसकी बात हो रही है। हाँ, तो जो लोगों ने अल्लाह ताला के सिस्टम को, यानी कुदरत की सिस्टम को छोड़ के अपने अपने कानून बनाए, अपने अपने ग्रुप बनाए, उसमें सारे मजहब आ गए जो भी सब। तो क्या अल्लाह पाक कहते हैं वो अलग सेक्ट है, वो उनका दिन से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह ताला की किताब से, अल्लाह ताला के कानून से लेना देना नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन बना पे, लास्ट लाइन पढ़ो बस। कुल्लु हजब बेमा दीनहुम फरौन, सब अपने अपने दिन में खुश है। सारे ग्रुप सारे अपने अपने दिन में मजा कर रहे हैं, बोले हम ही सही है, बस यही सही है, ये मानो। हाँ, भाई अल्लाह कितना मतलब मतलब मेरा अल्फाज नहीं है यार, मुंह पे छोड़ो यार। कितने यार आसान कसम खुदा अल्फाजों में की यार, समझा दिया, कितने आसान अल्फाजों में समझा दिया यार, और क्या चाहिए। यार हर एक स्टेप जो इंसान देखो ये आ आगे गया। चल के हाँ, करने वाले है कुल्लू, वो हर एक स्टेप एक में। मिनट देखिए, एक मिनट, कुल्लू ओके, सारे के सारे हजब ग्रुप, सारे ग्रुप इसमें सब आ गए, सब मजहब आ गए, इस्लाम भी आ गया, सनातन भी आ गया, क्रिश्चियन भी आ गया, सब बेमा जो कोई भी उन्होंने दीन उन्होंने दीन बनाया है, उनके दीन में, उनके सिस्टम में फारिहून, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। वही मसल ना दर्रा दुआ रब्बिहिम। वालेकुम। वालेकुम सलाम राजू भाई, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। आयत सुनो राजू भाई, आयत सुनो, देखो हाँ जी हाँ जी। इंटेलिजेंस देखो, इंटेलिजेंस क्या। कौन? अरे मुनाफ भाई, इसमें तो गजब कर दिया वाकई में यार, क्या बात कही है, करिए जरा तर्जुमा करिए, मजा आ गया यार। किसका? मतलब भाई आगे चलो। हाँ, ये 33 का इजा मसल नास दर्रा दुआहुम रब्बुहुम मुनीबुन इलैहि, जब कोई तकलीफ आ जाती है, दर्रा मतलब लोगों को, मसा मतलब छू लेना, वो इजा जब मसा जब छूती है लोगों को तकलीफ, जब लोगों को तकलीफ छूती है तो दुआ करते हैं रब, उनके रब से,
हाँ। रब से दुआ करते हैं, उसके तरफ लौटते हैं, मुनीबुल इलैही, उसके तरफ लौटते हैं, ओके। तो अल्लाह ताला उसको वो कर देता है। सुमा इज़ा इज़ा कुहुम मिनहू, जब अल्लाह ताला उनको रहमत, उसकी रहमत देता है, मिनहू, उनको रहमत, उसमें से उसको रहमत देता है, या अल्लाह ताला सही कर देता है, जो भी नुकसान हुआ उनको बचा लेता है। तो इज़ा फरीका मिनहू, तो उसमें फरीका मिनहुम, उसमें से कोई, उसमें से जो ग्रुप जो है क्या करते हैं, मुख्य ग्रुप, मिनहुम बे रब्बिहिम युशरिकून, फिर सीख करते हैं। जब अल्लाह ताला सही कर देता है, दुआ उसी को कर रहे हैं, जब फंसते हैं, जब तकलीफ आती है तो ऊपर वाले को याद करते हैं, चिल्ला पुकार करते, रोते हैं। फिर जब उसकी रहमत करता है तो उसके बाद फिर वही हरकतें करते हैं, सिर करना चालू कर देते हैं, सिर करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही फिरौन वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं। अब अल्लाह पाक कहते हैं ली यकफरू बेमा आता है ना हम। अब क्या करता है अल्लाह पाक, जब इनको जो मैंने रहमत दी इस पे कुफर करते हैं, क्योंकि सिर कर रहे हैं ना, तो जो मैंने इनको दिया, मैंने इनको ये मुसीबत से बचाया, इन्होंने दुआ की, तो बाद में कुफर करते हैं, उसमें कुफर करते हैं। ले कुफर बेमा आता, जो मैंने दिया उनको, आता ना हूँ, मैंने इनको जो अलाउड किया, तो कहते हैं फतमत्तऊ फसौफ यअलमून। तो अल्लाह पाक कहते हैं मजे करो। ये जो है अल्लाह पाक कहते हैं अच्छा तो फिर मजे करो, हाँ ये मजे करो, ये फतमत्तऊ, ये मजे करो। फसूफा मतलब जल्दी, सुन जल्दी तुमको पता चलेगा, जल्दी तुमको पता चलेगा। हम अंजलना अलैहिम सुल्ताना, अल्लाह पाक कहते क्या मैंने इनको कोई अथॉरिटी दी है, मैंने किसी को अथॉरिटी दी है, अल्लाह पाक पूछ रहे, क्वेश्चन है। हाँ, मैंने किसी को अथॉरिटी दी है। फहुआ यतकल्लमु बेमा कानू बिही यसरकून, तो फिर वो बात करते हैं, वो बातें करते हैं, जो वो लोग इसमें सीख करते आ रहे थे, मिलावट करते आ रहे थे। क्या मैंने इनको अथॉरिटी दी है मिलावट करने की? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ, वो इज़ा इज़कना नास रहमत फराहा बेहा, जब अल्लाह पाक कहते हैं जब मैं मेरी रहमत इन पे देता हूँ, जब इन पे मैं दया करता हूँ, जब इन पे रहम करता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं, डांस करते हैं। हाँ, वही तुसीबहुम सय्यातो बिमा कद्दमत अयदीहिम, देखो यहाँ कितना मस्त लिखा है, यानी जब उनको मुसीबत छू लेती है, यानी एविल, सय्याता मतलब एविल, हाँ जो मुसीबत एविल वाली को छू लेती है, क्यों छू लेती है? बेमा कद्दमत, जो उन्होंने अपने हाथों से कमाया, जो अपनी एबिलिटी से कमाया, यानी जो उन्होंने कर्म करे, गलत काम करते हैं, जब गलत नतीजा आता है तो उनको मुझे छू लेती है। समझ भाई ने बात? हाँ, जी, मुनाफ भाई, बोल राजू भाई। एक पत्थर, एक मूर्ति खुदा की तो हो सकती है, पर वो खुदा नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा खुदा नहीं हो सकती, लेकिन खुदा की हो सकती है। मतलब एक पत्थर खुदा ने बनाया है, पर वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है, पत्थर खुदा नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो उसको खुदा मान के पूजना भी गलत है मेरे हिसाब से। फिर वो इज़्ज़त रुक जा हूँ, वो लोग क्या है, डिस्पेयर हो गए। अब डिस्पेयर क्यों हो गए? कि इधर एविल नन को छू लिया। क्यों छू लिया? कि गलत हरकत उन्होंने आगे बढ़ाई। हाँ, अब मायूस होके बैठ गए। अवलम यरू इन्नल्लाह यबस्तु रिज़्क़न लिमन यशाअ व यक़दिरु। हाय, क्या बात तुम कही देखते यार। नहीं हो कि अल्लाह ताला प्रोविजन अता करता है जो लेना चाहता है उसको, मेजरमेंट से। हाँ, उतना ही यकदर मतलब उतना ही देता है जितनी उसकी ब्रेन की एबिलिटी है समझने की। गजब, जबरदस्त बात। बेशक मेरी आयतें, इन्ना फी ज़ालिका आयतें लिक़ौमिन युमिनून, तो मेरी आयतें हैं, ये जो निशानी है किसके लिए? जो अक्लमंद के लिए है भाई। जो ईमान रखता है, जो ये पीस के लिए काम करना चाहता है, अमन में आना चाहता है। हाँ,
اب دیکھیے مناب بھائی اس کی اگلی آیت پر کریے اور زبردست بات ہے. پھر اب امن کو لانے کا کیا طریقہ بتایا اللہ نے. ہاں فعات مطلب دے دو ہاں فعات دو. فعات ذا قربا مطلب قریبی رشتے دار. ابھی کیا ہوا, یہ تم کو مصیبت آئی, تم نے غلط کام کر لیا, مصیبت آئی نا, یہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں ان کو ایک میجرمنٹ سے جو لینا چاہتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. تو اب کیا کرو, تو اب دے امن دو میں آنے کے لیے کر دو لو. اپنے, ہاں اپنے قریبی رشتے دار کو حق ہو, ان کا حق دو. دیکھو ان کا بھی حق ہے, وہ مسکین جو ضرورت ہاں مند ہے, وہ بالکل. بالا سبیل اور جو راستے کے لوگ ہیں ہاں ان کو دو, کیونکہ حق وہ یہاں لکھ دیا, حق ان کا حق ہے. یہ نہیں کہ تم ان پہ احسان کر رہے ہو, نہیں یہ ان کا حق ہے. اللہ پاک ہے میں نے تم کو جو دیا اس میں ان کا بھی حق ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ اسی طرح خیر ہے للذین جو لوگ یریدون جو ارادہ رکھتے ہیں, کس کا ارادہ رکھتے ہیں, وجہ للہ اللہ کے نظریے کا, اللہ کے سسٹم کا, ان کا. اور آئے کیا کہہ دیا, وہی لوگ جو لوگ یہ کریں گے اولئک هم المفلحون, یہی کامیاب رہیں گے. اولئک هم المفلحون, کامیاب ہو گئے نہیں, کامیاب یہ لوگ ہی کامیاب رہیں گے جو اس طرح کے کام کریں گے. کون سے کام, جو لوگوں کا حق دیں گے اپنے رشتہ داروں کو, مسکین کو, وہ ابن سبیل کو, اسی میں خیر ہے. اور جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے ساتھ میں چلنا ہے, یعنی قدرت کے قانون کے ساتھ میں چلنا ہے, وہی لوگ کامیاب رہیں گے. آپ نے ذرا بھی ادھر ادھر کیا تو گئے. نہیں اچھا دیکھیے آگے گھمنڈ بھی توڑ دیا اللہ نے کہ اب تم جو سمجھتے ہو کہ تم زیادہ دے رہے ہو یا تم دان دے رہے ہو یا تم اپنی طرف سے تو بانٹ رہے ہو. وما آتے تم ریبن مطلب یہ بڑھوتری ہے, یہ بڑھوتری ہے. یہ تو لوگ نہیں یار یوز کرتے, ایکچولی بڑھوتری ہے. اور جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا مین بڑھوتری میں سے, اور تم نے اس کو انکریز کیا تمہارے مال میں, عموم الناس لوگوں کے مال میں. اوکے نا, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے پاس اللہ کے پاس تم کچھ ملنا نہیں, اجر نہیں ملنا نہیں ہے. یعنی تم نے جو حق دینے کا تھا وہ نہیں دیا, اب وہ تمہارے مال میں بڑھوتری ہو گیا, مال میں بڑھوتری ہو گئی نا. تم نے کیوں نہیں دیا, کہ تمہارے مال کے اندر انکریز کرنے کے لیے. جمع خوری کرنے, ہاں جمع کو, یعنی 100 میں سے کیا حکم ہے, 100 میں سے 20% دینا ہے. یہ جو ابھی یہاں پہ 3 بتائیے لیکن 8 کیٹیگری ہے, یہ ان کا حق ہے آپ کو دینا. آپ نے نہیں دیا کیونکہ آپ کا مال کم ہو جائے گا, تو آپ نے بچا نہیں دیا, تو اب آپ کے مال میں بڑھوتری ہو گئی. تو اللہ پاک کہتا ہے اس کو لوگوں کا مال. دیکھو بہت بہت سولid اسٹیٹمنٹ ہے یہاں. اللہ پاک کیا کہتا ہے, ان کا مال تمہارا نہیں ہے. ان کا تھا, ان کا روک لیا اس کو. ہاں ان کا تھا. تو تم یہ کیا سمجھتے ہو, تمہیں مال میں بڑھوتری کر کے تم کیا سمجھتے ہو اللہ سے تم کو اس کا اجر ملے گا؟ کچھ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں, کچھ بھی نہیں ہے. وما آتے تم من زکا, اور جو کہ تم زکات دو گے, لوگ ہی پیوریفائی کرو گے, جو اللہ تعالیٰ کا وجہ دیکھو ہے پیوریفائی آ گیا نا, یعنی ان کے ذہنیت کو صاف کرو گے, وج کرو گے, زکی کرو گے. زکی مطلب پیوریفائی کرنا. تریدون مطلب تم ڈیزائر کرتے ہو کہ پیوریفائی کرنا اس کے طرف, وجہ اللہ کی طرف. جس کا بھی نظریہ اللہ کی طرف ہوگا یا قدرت نیچر کے سسٹم کے ساتھ میں ہوگا, فاولئک هم المضعفون, تو وہی لوگ ہیں جو ان کو فولڈ میں ملے گا. مضعفون مطلب اضافہ ہو جائے گا ان کے ہر کام میں. مطلب برکت کے لیں, پھلنا پھولنا کے لیں. ہاں
अल्लाह वल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही है, अल्लाह ही वही ज़ात है जिसने तुमको खलक किया, सुम्मा बाद में रिज़्क़कुम, तुमको प्रोविज़न दिया, प्रोविज़न में सब आ गया, हर चीज़ आ गया, खाना, इल्म, इसमें मेन तो इल्म आ गया, उसके बाद जो भी प्रोविज़न है वो तुमको जीने के लिए। सुम्मा युमीतुकुम, बाद में तुमको मौत देगा, मैंने फिजिकल मौत नहीं, यानी तुम इल्म नहीं होगा। सुम्मा युहीकुम, फिर तुमको इल्म मिलेगा, तुम फिर चलते फिरते हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे। हल मिन, क्या तुम्हारे शुरकाकुम, क्या तुम्हारा शुरका जो तुम जो जिसकी तुम बातें सुन रहे हो, जो अल्लाह ताला के साथ मिला रहे हो, है ना, अल्लाह ताला की बातों से मिला रहे हो किसी इंसान को, मैं यफलु मिन ज़ालिका, इसी तरह ये कर सकते हैं। हाँ, यानी ये आई बात। कुरान की जो आयतें हैं, कुरान के अंदर जो नॉलेज है, कुरान के अंदर जो गाइडलाइंस है, आप दूसरी कोई किताब, इंसान की किताब, चाहे वो हदीस हो, चाहे कोई भी हो, क्या वो दे सकता है ऐसा? ये वो क्वेश्चन, अल्लाह भाई ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, क्या ये आपको कानून बता, ये कुदरती कानून बता सकता है जो मैंने तुमको बताया? तुम्हारी साइकी के बारे में बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। ज़ालिका मीन से कुछ भी नहीं बता सकते। देखो मीन से ही लिखा है, कुछ भी बता नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं बता सकते। सुब्हानहू ताला, सुब्हानहू ताला, देखो फिर वो आ गया, हाँ, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। वो ताला अलूफ हो गया, तुमसे दूर हो गया, अल्लाह ताला तुमसे दूर हो गया। क्यों? कि तुम शिर्क करते हो। यानी क्या हुआ, कहने का मतलब, जाओ, तुमने मेरी आया था, जो मैं तुम गाइडलाइंस दे रहा हूँ, तुमको हिदायत दे रहा हूँ, तुमको उसको नहीं माननी, लोगों की माननी है, तो फिर जाओ, उधर जाओ, अल्लाह ताला तुमसे दूर हो गया। हाँ, ज़हर अल फसाद फिल अलबर्री और बहार बिमा कसबत, अब ये पेड़ हो गया, जाहिर हो गया। क्या जाहिर हो गया? ये लोग, ये शिर्क करने वालों का फसाद, करप्शन। फी बर्री, बर मतलब जो तुम सर्टन थे, किस पे सर्टन थे? नॉलेज के ऊपर तुम सर्टन थे। और कंफ्यूजिंग, जो बाहर मतलब कंफ्यूज है ना, असमंजस, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग थी। जो कुछ भी तुमने बेमा कसबत ऐदी, जो कुछ भी तुमने कमाया, जो कुछ भी तुम्हारे हाथों ने कमाया, तुमने कमाया, तो फिर अल्लाह का वाला क्या लोगों ने कमाया, ली जिक्की, तुमको जिक्की मतलब चखाएगा, बाद अल्लज़ीना अमल, जो तुमने अमल किए थे, अल्लज़ीना अमलू लालम यरजून, जो तुमने अमल किए। देखो ना, ये सब सारी की सारी बात कर्म की आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो तुमने तुम्हारी काम करे एक्शन ना, है, उसको ऊपर रिवॉर्ड। हाँ, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरे पे मानोगे, मेरे को नहीं मानोगे, उसकी बात नहीं हो रही है। सारे का सारा जो रिवॉर्ड है ना, वो तुम्हारे अमल पे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारा अमल होगा लाल लहुम यरजौन, वो बाद में तुमको मेरे पास मिशन के लिए लौटना है। यानी यरजौन का मतलब सिर्फ लौटना नहीं है, मिशन पे लौटना है, वापस उसी के पास, या सही काम के लिए लौटना है। जी, इसकी अगली आयत में मिसाल भी दे दी अल्लाह ने कि देखो लोगों ने ऐसा करा तो क्या हाल हुआ उनका। कुल सही फिल अर्द है, हाँ, कह दो उनको कि घूमो, सही में ट्रैवल करो, फिल अर्द, जमीन में, फांजर, जमीन में, या किताब में पढ़ लो, जो किताब में भी दी हिस्ट्री, या जमीन पे ढूंढोगे तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। फांजर, देखो, कैफा काना की बता लजीना मिन कबलो, कैसा उनका एंड हुआ, या क्या हाँ, उनका नतीजा निकला। सबक ले लो कि जो लोग मेरे सिस्टम के खिलाफ थे, क्यों, क्या नतीजा निकला? काना अक्सर होम मुश्रिकीन, क्योंकि वो उनकी अक्सरियत मुश्रिक थी। हाँ, मिलावट करते थे वो कानून में। अपने तौर ये है। तरीके डाल दिए। हाँ, हम्म, जी बोलो सफदर भाई, राजू भाई बोलिए। क्या बोले? मैं तो सुन रहा था। यानी कितना 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 समझा है लोगों को, लोग समझते नहीं है। फिर आगे जो कह रहा है मुल्क हाकिम वजू का दीन कायम। देखो,
फिर रिस्टोर करो अपना आउटलुक, अपना नजरिया, अपनी सोच को। कहाँ पे? ये जो नेचर की सिस्टम है, दीन कायम जो है, ये जो नेचर की सिस्टम है, इसके ऊपर कायम करो, रिस्टोर करो तुम्हारी सोच। मिन गबल अब ये वार्निंग आ गई, मिन गबल अन याति योम ला मरद्दु लहू यानी मिन अल्लाह। उसके बाद फिर कोई मरद्दु लहू का मतलब क्या होता है? अपने उसको एवॉइड नहीं कर सकते, यानी उसको आप टाल नहीं सकते। जो आप उससे अल्लाह पाक कहते हैं, हाँ, उससे पहले तुम अपना नजरिया सही कर लो, अपनी सोच सही कर लो। अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नजरिए की तरफ या नेचर के तरफ अपनी सोच कर लो, जो अल्लाह पाक ने कानून बताए उसके तरफ कर लो। उससे पहले के तो उसके पहले तुम्हारे पास रिटर्न का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। योमे जी यसद्दऊन। तो फिर उस दिन फिर डिवाइड होंगे ना लोग, कि मुझसे करने वाले और एक अल्लाह की आयतों पे चलने वाले। उससे पहले फिर अल्लाह ताला तुमको अलग कर दे। मिन कफरू फअलैहि कफरू, जो जिन लोगों ने भी रिजेक्ट किया, ये सिस्टम को रिजेक्ट किया, अल्लाह ताला के कानून को रिजेक्ट किया, वो उनके लिए वही है, फिर उनके लिए फिर उनका इल्जाम वही है। वमिन आमल असलहा सालेहन, और जिन लोगों ने भी रिकनसाइल किया, अपनी सोच को चेंज की, सही थी, जो गलत सोच थी उसको प्यूरिफाई किया, उसको साफ की, तो वो आराम फला और नफ्स। सुकून में आ जाएंगे वो। हाँ। हाँ, तो ये जो भी ये करेगा, ये उसके लिए है, वो उसकी नफ्स से, फला नफ्स है, उसके नफ्स के लिए है। हम्म। जो मोमिन कुफर भाई, करेगा वो खुद भुगतेगा, और मोमिन जो भाई, इस्लाह करेगा उसका नतीजा। जी बोले। मोमिन भाई को बता रहा हूँ, हमारे इंडिया के अंदर हर कोई भगवान हो जाता है, बहुत भगवान, लाखों भगवान है, अरे तो अपनी कहाँ पूजा मोमिन भाई करवाते हैं। मोमिन भाई कहाँ है? मैं अरे बता रहा राजू हूँ भाई आपको, मैं बोल सुनो रहा हूँ तो। डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं हाँ आप? जी, हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने सोचा वो है। ठीक है सर, मैं कह रहा हमारे इंडिया के अंदर लाखों भगवान हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, आरती उतरवाते हैं, उनकी फोटो घर घर में है, और सभी दावा करते हैं मैं भगवान हूँ और उनके भगत हैं। राम हाँ तो रहीम होया एक, सुनो तो, एक राम रहीम होया, वो चला गया पंजाब में, बोलता है हाँ मैं भगवान हूँ, और ये जो इनके सिखों के गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह, उनके कपड़े पहन लिए, बोला मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ। उनके पीछे झांक पड़ के तलवारें ले लेके भाग के